everyone, this is Vishaka Daga coming up with the next session of Simplifying the Editorials, where we pick up the most important editorial for you, जो कि examination perspective से ज़्यादा important है. We'll explain you in detail और आपका काम हम कम करते हैं. So like stay connected to us and we'll do the hard work for you. Let's move ahead. Important article is new IT rules, or IT rules are in like news these days a lot, because of which even two articles were this only, two important article, and we'll discuss both of them. And then there's the third article on the cyclone, and then we'll discuss each one in series. The first article, it talked about it's a very important, if you can scribble it somewhere, ki speech is free, but freedom that comes with it, freedom that comes with responsibility. So ये आप कहीं भी line लिख सकते हैं. If you're writing an essay, if you're writing even beginning an ethics answer, beginning an answer in paper 2, you can write speech is free, but the freedom that comes with responsibility. So in article it defines what responsible speech is. So it says that responsible speech is something which does not defame anybody, which does not have an inciting a message in terms of violence or hatred or discrimination on the basis of race, religion, caste or sex. मतलब ये सब आप नहीं कर रहे, आप दंगे नहीं फैला रहे हो अपनी स्पीच से, आप किसी के बीच में नफरत नहीं फैला रहे हो, then that is a responsible speech. Second is hate speech is it also talk about what is hate speech. So it says hate speech is something which actually is one which incite the violence and everything, and it says for the same reason it is prohibited for the common good and good only. That's why it says making the change in IPC is welcome. So article welcomes a change, and I'm it is this article I'm talking about, and now onwards I'll bring in this format only, so that you must know which article I have made a presentation, which article was important. So it is this article. This article is important, so I'm going to talk about it. So is the hate speech के बारे में बोला कि now next is for that purpose it says कि since hate speech is not good but responsible speech is good on social media, so the Home Ministry is going to set up a panel or a committee to define the hate speech. And which is more important, article says कि after the struck down of the act, the section 66 of the IT Act. Now section 60 जो ना श्रेया सहगल केस में struck down कर दिया गया था 2015 में, because this act was misused so many times Facebook पे किसी भी तरीके की स्पीच को रोकने के लिए, कि अगर किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ भी कह दिया गया तो इस एक्ट को यूज कर लेते थे. So this act was instead misused than being used, politicians used to misuse it. अब क्या है, in absence of it the common people are misusing the absence of law. कोई भी hate speech फैलाता है, because of which a lacuna is being faced, a lacuna is being felt. So now article says कि अब हुआ क्या है, पहली बात पहले तो ये नीड्स थी, फिर आर्टिकल ने बोला कि अब देखो लॉ कमीशन की रिपोर्ट और जो टीके विश्वनाथन कमेटी थी, दोनों ने बोला था कि 2 सेक्शन ऐड कर दो. वो दोनों सेक्शन कौन से थे? एक सेक्शन 153C और एक सेक्शन 153A. सेक्शन 153 क्या बोलता है? दैट इफ एनी स्पीच, अगर वो किसी को थ्रेटन करते हैं विद इंटेंशन टू कॉज फियर और वायलेंस, देन दैट विल बी हेट स्पीच. तो ये हेट स्पीच के बारे में बोलती है. कौन सी स्पीच? मतलब ऐसे एक्ट को पनिश करेगी ये, मतलब एनी स्पीच जो कि किसी को थ्रेटन कर रही हो, कि देख ट्विटर हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल यूज रेप थ्रेट्स, पीपल यूज कि तेरे घर पे आके तेरे को मारूंगा. So these kind of speeches is something this is against, okay, and it talks about real intention, and that person is going to do in detail. This kind of speech is tried to prohibit. Next is the section 153. जो कि any speech that cause fear among the group. So ये थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे है और ये थोड़ा आपका ग्रुप लेवल पे है, तो दोनों ही फियर और वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे है, और दूसरा आपका जो 153A है वो थोड़ा आपका ग्रुप लेवल पे है. 505 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. मूविंग अहेड इज अब आर्टिकल टॉक अबाउट की इश्यूज क्या है इसमें. तो पहला आर्टिकल सेज कि पहले तो इट हैज अट्रैक्टेड सो मच क्रिटिसिज्म बिकॉज आप ये बहुत जल्दी में लेकर आए हो विदाउट एडुकेट कंसल्टेशन. आप any legislation is brought for the people, by the people, for the people, of the people. तो by the people वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा ना इसमें, कि लॉ इज ब्रॉट बाय द पीपल. ठीक है, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, पर एटलीस्ट लोगों से बात तो कर लो ना. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन. अ लॉ, अ डेमोक्रेसी is for the people, by the people, of the people. Then law should also be for by the people. तो by the people नहीं रहा अगर आप कंसल्ट नहीं करोगे तो. एंड देन ऑल्सो सेज कि आप मिड्स ऑफ पैंडेमिक में लेकर आ रहे हो,
तो इसमें तो और कंसल्टेशन की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये एक्ट आपका इंक्लूसिव नहीं होगा। एंड देन एक्ट सेज कि आपने बहुत नैरोली डिफाइन किया है और वेग टर्म्स यूज गई है, तो जो जिस वजह से आईटी एक्ट को स्ट्रक डाउन किया गया था ना, एग्जैक्टली सेम चीजें आप वापस लेकर आ गए हो। इट वॉज वेग एंड डेफिनेशन वॉज लाइक नैरो, सो इट इज लाइक द आर्टिकल सेज कि देखिए पहली बात तो एक्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज टू बी सॉट, और लाइक इंसाइटमेंट वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए जो कि पब्लिक ऑर्डर पे थ्रेट हो, एंड ओनली जब ऐसा हो रहा हो तभी उस स्पीच को रोकी जाए, बिकॉज लाइक ओनली देन लाइक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना चाहिए, बिकॉज वी शुड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आप यू शुड नॉट आर्बिट्ररी स्टॉप इट, यू सेड कि बहुत लाइक क्लियरली डिफाइन हो, तो जिससे कि इसका मिसयूज ना हो, द सेम वे द IT एक्ट 66A was misused. So with this the article conclude. Moving ahead is the next article, और इस बार हम इस वाले एक्ट के आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। नो दिस आर्टिकल ये भी IT लॉज के बारे में बात कर रहा था, बट ये थोड़े डिफरेंट के बारे में बात कर, इट वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट कमिटी जो होम मिनिस्ट्री ने बैठाई, ये उन्हीं लॉज के बारे में बात कर रहा है जो कि हम लेटेस्ट एक्सप्लेन में लेकर आएंगे, और जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। एंड फॉर द सेम रीजन आई टॉक्ड अबाउट अनुराधा बसीन केस एंड पुट्टू स्वामी केस, like on the same law this article has come. This article talked about कि how new IT rules has come and its social media platform do not comply with it, उनके जो safe harbor laws है वो हटा दिए जाएंगे। अब ये safe harbor law क्या है, I'll discuss that in IT laws, in IT let us explain video now, and this but for now understanding इतना समझ लीजिए कि ये देखिए आपका ये Facebook है, अब आप X person is someone who is using the Facebook, and on that X person use some hate message like, oh, I don't like Hindus, or I don't like Muslims, I don't like this. Now this kind of message is basically a very like inciting, so a person can be arrested for this. अब इसके लिए Facebook को अरेस्ट नहीं करोगे, दिस इज सेफ हार्बर और इंटरमीडिएटरी क्लॉज, जिसके बारे में बात करेंगे कि X person does something using the platform of Facebook, then the Facebook will not be held liable for this. It is the X person only. और अगर आपको ये बंदा मिल भी रहा है ना, तो भी आप Facebook को जाके नहीं पकड़ोगे कि आपने पब्लिश कैसे होने दिया। So like it is the X person only. This is called safe harbor rule. सेफ हार्बर रूल कि फेसबुक को इम्यूनिटी मिल रखी है कि इसके प्लेटफॉर्म को कोई और बंदा यूज करे तो फेसबुक इज नॉट लाइबल फॉर दैट। द आर्टिकल सेज कि इफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मानते हैं तो उनसे ये सेफ हार्बर रूल्स हटा लिए जाएंगे। आर्टिकल सेज दैट न्यू रूल्स के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ में क्या बोलता है कि पहली बात तो टॉक्स अबाउट हाउ प्राइवेसी बचेगी लोगों की। प्राइवेसी कैसे, अगर किसी के प्राइवेट इंटीमेट फोटोज किसी ने, अगर किसी सेकंड पर्सन ने, अक्सर ऐसा होता है रिलेशनशिप ब्रेक्स, अक्सर तो नहीं होता, सो in some cases what happen is if relationship breaks and one person in order to take revenge put some intimate photos on the Facebook or some mediated platform, in that case the person जिसकी photos डाली गई है they can go make a complaint and that pictures will be taken down within 24 hours so that damage आपका reduce हो सके। So this is like a good a welcome step, so this is good, so a good step in that respect। Second, इसमें कंप्लाइंस रिपोर्ट भी है, इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कितना दे हैव फुलफिल दी रूल्स दैट द गवर्नमेंट हैज मेड। थर्ड इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है कि पहले क्या था कि लोगों के पास कंप्लेन करने के लिए ऑप्शंस बहुत कम थे, बट अब वो लीगल रिकॉर्ड्स भी ले सकते हैं। थर्ड इज नाउ अब लेबल होगा इन्फॉर्मेशन के ये ओन्ड है, स्पॉन्सर है या एक्सक्लूसिवली कंट्रोल है या फिर एडवर्टाइज है, सो दैट लोगों को पता हो कि वो न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट में फ़र्क कर सके कि ये तो पेड है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। सो इन दिस वे दिस इज कंसिडर एज अ वेलकम स्टेप बाय द आर्टिकल। Now it also talk about how Life Insurance Corporation of India now it is going to अब ये बैकग्राउंड बना रही है नेगेटिव हाफ के लिए। सो ऑथर सेज कि पहले आप देखिए जजमेंट को देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मनु भाई शाह इन 1992 केस इट इज सेड कि फ्रीडम टू सर्कुलेट वन ओन्स व्यू इज अ लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। सो जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम टू सर्कुलेट आप कह सकते हो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इटसेल्फ इज अ लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जितना आप उन्हें स्टिफल करोगे उतना ही आप डेमोक्रेसी को किल कर रहे हो।
So any attempt to stifle this right will amount to the death or the death nail on the democracy. So this is a very paramount principle. This has to be protected, and it is for that reason that this law has to be protected. Now the second half of the second half of the article is talking about what are the challenges that are coming in the new IT rules. So हम एक एक करके उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now the first is इसमें कुछ constitutional wrong होंगे, कुछ legal wrong होंगे, कुछ procedural wrong होंगे. As much as possible, try to remember your answer on that line so that you know there is a structure. And if you memorize in structure, you're going to write that in structure only, and that is going to help you a lot. अपने थोड़ा जितना हो सके अपने आंसर में structure लेकर आइए. तो the legal wrong, first legal wrong is this कि the one I talked about in the daily current affairs video कि ये देखिए, ये ना आपका ओरिजिनल जो लॉ है दैट इज आईटी एक्ट. आईटी एक्ट में इटसेल्फ इट डज नॉट कवर द रूल जो इसमें है. तो आपके रूल्स तो इसके अंदर ही अंदर जुरिस्डिक्शन में आने चाहिए थे ना. जब ओरिजिनल एक्ट में ही, पेरेंट एक्ट में ये सब नहीं है, तो आप रूल्स में कैसे लेकर आ गए, राइट ना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मैंने इवन इन दैट आर्टिकल आई टॉक्ड अबाउट कि आपका बेसिकली लॉ, एक तो लॉ होता है जो आपके पार्लियामेंट में पास होता है, बट क्योंकि वो सभी डिटेल्स को ध्यान में नहीं रख पाता तो सबऑर्डिनेट लॉ आते हैं. सबऑर्डिनेट लॉ आपके पार्लियामेंट में पास नहीं होते, ये आपके मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट मिलके बनाते हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए. उनको थोड़ा रूल्स की फॉर्म में भी लाया जा सकता है. इनका सिर्फ एक कंडीशन होती है कि दे शुड बी अंडर द एम्बिट ऑफ द ओरिजिनल लॉ. अगर ये आपके ओरिजिनल लॉ है तो उन्हीं के सब्जेक्ट के बीच में आएंगे, राइट ना. अगर जैसे एजुकेशन वाला है और हेल्थ के ऊपर लॉ लाने लगे तो उसके एम्बिट पे ही नहीं है ना. यहाँ पे भी सिमिलरली जो आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब उसकी तो अभी इनके पास है ही नहीं, मैंडेट ही नहीं है. मतलब कि IT law does not have this does not regulate digital media. जो आपका है IT Act does not regulate digital media, and thus new IT rule आपके jurisdiction को exceed कर रहे हैं. Second thing it says that कि आपके मीटी रूल्स लेकर आ रही है, जबकि ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर होना चाहिए. आप कोई भी जस्टिफिकेशन क्यों ना दो इस चीज़ के लिए. तो सेकेंड इज दिस. थर्ड इज इट सेज कि भाई ये प्रोसीजरल रॉन्ग है. The intermediary have to take down the content within 36 hours. But मतलब आपने now in this process you have deprived the intermediary of fair recourse कि 36 hours में वो अगर by the way if he found that is the demand made by the government is illegal, now they'll have to go and complain somewhere. Like even this case only, ये है तो रूल सी, बट सुप्रीम कोर्ट जाने में, जजमेंट आने में उसमें भी कितना टाइम लगता है ना. अब 36 आवर्स में आप कह रहे हो कि ब्रिंग इट डाउन. सो इट सेज कि टाइम बहुत कम है. एंड ऑन द सेम थिंग इट सेज कि आप टाइम ऐसे भी गलत है कि आपने मतलब एक तो लॉकडाउन के टाइम पे लेकर आ गए हो, दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगेगी इस पूरे में. नोडल ऑफिसर बैठाना, कंप्लेंट्स ऑफिसर बैठाना, ग्रीवेंस ऑफिसर बैठाना, इतने में बहुत सारी कॉस्ट बढ़ेगी और इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा इस चीज़ में. इकोनॉमिक कॉस्ट को भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है. नेक्स्ट इज इट टॉक अबाउट बहुत सारे तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी रॉन्ग है ये. जैसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आता है. अब गवर्नमेंट व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं उन पे एक्सेस ला सकती है, तो कोई इससे क्या हो गया, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर्ड हो जाएगी. इससे आपका आर्टिकल 19 हैम्पर होता है. मतलब इट इज लाइक गैगिंग. वंस यू नो कि आपके मैसेजेस ट्रैप हो जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आसानी से नहीं बोल सकते. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आसानी से नहीं बोल सकते, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर हो रही है. और अब नाउ वी आर सीइंग दीस डेज कि मेनी कॉमेडियंस एंड एवरीबडी ऑफ ट्विटर इज बीइंग यूज्ड, दे बीइंग पुट इनटू जेल. So because of this the freedom of speech is being hampered. Second, it also undermines the right to privacy. आपके WhatsApp पे family messages होते हैं, like people talk to their companions and everybody. Now there is no safe space for the people to talk about. On the basis of which article says कि it has so many issues which the government has not taken into consideration. So it says कि so it gives the warning democracy stand undermined in direct proportional to the attack जो कि citizens के right पे होता है. तो यहाँ पे जितनी उनकी freedom of speech आपकी टार्निश हो रही है, आप मान लीजिए जितनी आपकी speech curtail हो रही है ना, जितना आपकी स्पीच, अगर ये आपका ग्लास है स्पीच का और अगर ये इतना भरा हुआ था और अगर ये इतना कम होता जा रहा है ना, भी इतना ही है, तो इतनी ही आपकी डेमोक्रेसी बची है. अब ये रिलेशनशिप बहुत प्रोपोर्शनल है. तो दिस इज व्हाट आर्टिकल सेज कि अपनी स्पीच को प्रोटेक्ट करो, आप तभी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज साइक्लोन्स इन इंडिया.
साइक्लोन्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो साइक्लोन्स लाइक दिस आर्टिकल इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट साइक्लोन्स इज, दैट आई हैव टॉक्ड इन माय ओन लाइक वीडियो कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, उनकी लाइक हाउ दे आर फॉर्म्ड, इंडिया में क्या हिस्ट्री है, क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है, नॉर्मली क्या है. नाउ लेट्स टॉक विद डिटेल में क्या कह रही है. नाउ इट इज दिस आर्टिकल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इस दिस आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि अभी जो इंडिया में एबनॉर्मली, इट इज द सेम एनॉर्मली that I talked in the same videos talking about कि Bay of Bengal is experiencing many cyclone, but then talk about overall India is experiencing many cyclone which is sign of global warming. और I talked about how India ने इस साल ताउते तो यास बहुत देखे. इनफैक्ट it talk about cost. So this is the data जो आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि जैसे साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है, आप जितना डेटा कोड कर सकते हैं अपने ही आंसर को एनरिच कर पाओगे. डेटा इन टर्म्स ऑफ कि जब अम्फान हुआ था ना तो इंडिया को $14 बिलियन का नुकसान हुआ था. See this, just as one single cyclone cost around India $14 billion. और in terms of human life 24 million people displaced हो गए थे आपके. On the basis of this, the author says कि लाइक बे ऑफ बंगाल में काफ़ी साइक्लोन आ रहे हैं, वल्नरेबिलिटी भी बढ़ चुकी है और अब तो प्री और पोस्ट मानसून दोनों सीजन में फ्रिक्वेंसी और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ चुकी है. आप कॉस्ट भी देखो, आप फ्रिक्वेंसी देखो और स्ट्रेंथ देखो. तो आर्टिकल इसके बेसिस पे बोलता है कि अब हमें, आर्टिकल सीधा सजेशन बोलता है कि अब आपको डिजास्टर रेजिलियंस पे काम करने की ज़रूरत है. साइक्लोन्स के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, पीपल, फाइनेंशियल एसेट एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट इसने बोला बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि इंश्योर पीपल, उनको सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करो. उसके लिए क्या, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए कि कौन इम्पैक्ट हुआ, उनका सोशल रिलीफ दो. आर्टिकल से दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वेस्ट बंगाल में. एग्जाम्पल दे रहा है वेस्ट बंगाल का. सो यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल. जब आप डिजास्टर का वो बनाए कि हाउ इट हैज़ बिकम एन एग्जाम्पल. नाउ एड्रेस द रिस्क ऑफ साइक्लोन. अब आप यूजिंग स्पेसिफिक फंड यूज़ कर सकते हो, यूजिंग लाइक आप स्पेसिफिक फंड सेटअप करो, सोशल इंश्योरेंस मॉडल लेके आओ कि जैसे ही कोई इम्पैक्ट होता है आप उनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हो, विच इज़ इवन पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. लाइक लास्ट आपके एडिटोरियल में लाइक आई टॉक्ट अबाउट लाइक करंट अफेयर्स की कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन में ₹4 लाख कंपनसेशन होती है किसी डिजास्टर में अगर कोई पर्सन इम्पैक्ट होता है. तो इस तरीके के सोशल इंश्योरेंस मॉडल को मटेरियलाइज करने की ज़रूरत है. Overall, article conclude with one important thing कि build back better है. But how this article is different कि not just build back better, rebuild using green build back better होना चाहिए कि जो build back better है वो ग्रीन मॉडल पे काम करना चाहिए. तो ये आर्टिकल के हैं कि डिजास्टर रेजिलियंस पे काम करो, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स पे काम करो, आप लोगों को बचाओ, उनको प्रोटेक्ट करो, लोगों को इंश्योर करो. इंश्योरेंस पे काम देने की बात है. रिलीफ मटेरियल में करप्शन ना हो इस पे ध्यान दो और बिल बैक बेटर में थोड़ी अपनी ग्रीन अप्रोच लेकर आओ. सो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आई टॉक्ड अबाउट. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी. विल हेल्प यू लाइक प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज इन अ वेरी यूनिक वे, in a very simple way, I would say. So like stay healthy, stay at home and stay connected to EQYS.